So myself, Pallav Ghulam, I am currently studying at IIM Ahmedabad. I am first year student at IIM Ahmedabad, and I have 99.98 percentile in the CAT 2022. And in the VRC, I had 99.46 percentile. In the CAT 21, I had around 92.xx percentile in the VRC, and I jumped from 92.xx percentile to 99.46 percentile. The very basic or the strong reason for you attending this session and listening to me are that I will be listing some of the problems that I faced during my prep, and I hope many of you would be able to relate with that. So, some major problems that I faced, that after repeatedly solving n number of RCs, after repeatedly practicing for n number of hours, my scores were not improving at the first stage. Yeah, that is a real problem. Scores don't improve, right? You are stuck at one point, and that point becomes your benchmark. You want improvement from that point, but it's not happening, right? I hope many would agree with that. The next thing is that as a candidate, you don't know what is the right resource, from where to practice, from what to practice, and whether are you practicing from the right source or not. There are 100 types of suggestions in the market, and you literally as a candidate don't know which suggestion to follow. You first jump to an IIM Ahmedabad guy, then you jump to IIM Bangalore guy, then you jump to your mentor, then you jump to someone who has achieved 99 percentile in the VRC, and then everyone's opinion is very different, right? There is no, I would say, intersection between these opinions. So now again, you are at the stage where you were already at, right? You are already confused before asking the suggestions of n people, and right now also you are confused because you literally don't know where to go. Is it happening with you guys? Do you agree with that? Yes, right. So the main thing is that you are devoting hours to the VRC, and you are devoting more hours to the VRC as compared to other sections. But the improvement, the results are not coming, right? The results are not coming. You are giving everything what you can to the VRC, but still you are not satisfied with the results. And at some time, you would feel or you must be feeling that at least ज़्यादा रिजल्ट ना आए, मेरा कुछ 3-4 नंबर का इम्प्रूवमेंट तो दिखे मुझे. Every time I go with a hope, I receive a bad score, right? My confident, my confidence is thrashed by the mock scores. I start mock with full confidence, and but when I see my result, I feel that it's not working. The things are not working at all. What happens that you are preparing for something, you are preparing for XYZ, and when you start the mock, the type of RCs, the length of RCs, the difficulty level of RCs that appear in the mocks is literally way different than what you are practicing, right? So you get a shock at that time. In just few seconds, what happened, right? You're not able to you're not able to optimize yourself at that time. You are not able to decide what to do, how to do, right? These are the basic problems or major problems. And I hope many of you just are here to get a solution to these problems, right? The first solution I would give to everyone is to fix your resources as soon as possible. Fix your resources, right? Last night I read a comment. The girl was asking, if I do this much, would I receive this much? So there is no hard and fast rule when it comes to the CAT prep. I can't assure you that if you follow my strategy or if you follow anyone's strategy, you would receive this much score. Because the 99% of the things depends on how you tackle them.
the 1% role of the resources and my suggestions would be just 1%. 99% is how you take them, how you apply them in mocks. For example, if you as an individual are not able to control yourself, you become nervous while giving mock. How can I decide a strategy for you that you do this thing and you will not be nervous in the mock, right? That you have to decide. And that's why I repeatedly keep saying that no matter what, but don't give anyone more importance than your thoughts, right? Don't ask anyone ki how to control myself, how to control the nervousness, how to be calm, how to be patient during the mock. You have to introspect yourself. You have to sit with yourself for at least 20-30 minutes per day. And you have to jot down all the things on the paper, like what is going wrong with me, why the things are not working, right? You have to think about this. That is not just about knowledge. For example, if I talk about the VRC section, do you think that any uh, static knowledge is required in the VRC section, or any hardcore knowledge is required, unlike quant? So that is more about how you apply, how you manage yourself in those 40 minutes. You should not become too nervous to handle the VRC section just after reading the first para of the passage, right? There are obvious hacks, tricks to solve a passage, to solve the VA section. But first thing is manage yourself. Manage yourself at the right time, at the right stage. Because it happens a lot of time, even in the DLR, that even the sets are easy or hard. It doesn't matter. What matters is how nervous you are, how calm you are. If you are nervous, you will fail to complete a set within the given amount of time. For an easy set, you would also take around 30 minutes. For a 10-minute set, you might take 30 minutes if you are nervous, right? Yeah, I will talk about the source and everything, right? First thing is fix your resources. So now I will list down what I used, what worked for me. Let me tell you a story that I was very bad at the VRC. I was very bad at the VRC, and I used to think after looking at my mock scores that this section would hurt me a lot. This section would bring the overall percentile, and this section might make me failure at clearing the sectional cutoff also. Right? This happened with me. But I had one thing. I had just one thing. I had confidence. I had confidence in me that no matter what happens, I can't control the situations. I can't control the paper, but I will do 100% of the prep. Whatever is required, I will do for at least for the VRC section. And I did that. पल्लव Yeah. पल्लव यार आपको क्या प्रॉब्लम होती थी अपने अपने टाइम पे? आपके इश्यूज क्या होते थे फॉर VARC? Yeah, I will be coming to that. Just wait. Just let me complete first. Sure. Yeah. So see, the things would look very easy. Now you must also be thinking that he has good percentile in all the sections. He must not have faced anything like what we are facing right now. Yeah, right. But what I want to say is that in my first attempt, or even in the recent attempt, I had single digit scores 9, 8, 10, 11. Whereas my other friends were getting like scores like 30, 33. But now, after getting this much score, again, I had to decide how to move further, right? I can't be disappointed and wasting my time after seeing this score. So one thing I would say is ki be confident, right? Be confident about the situation. Like whatever happening with you might not be happening with others. Don't care about what is happening with others. They might be facing completely different situations, right? Just have a faith in yourself and say to yourself like,
I will do whatever is required, whatever is right for this section, and I will not think about the results. The results is just the byproduct of what I am putting in. If you are understanding the essays correctly, and one more thing, as an aspirant, we always think that we are doing things in the right manner. You must be feeling कि यार मैं तो पैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ भी सही से आ रहा है. I also mark the questions correctly, but still it is showing that the marked options are wrong. You might be feeling कि यार पेपर सेटर ही गलत है, and it happens with IMS most majorly. वहां पे हमें लगता है कि यार पेपर सेटर ही गलत है, राइट है ना, यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अपना फुल 100% दे रहा हूँ, बट स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आ रहे. तो you should accept the things. You should accept कि जो what I am thinking might be completely wrong. Did I contact with anyone to check my approach कि मेरा जो approach है, जो मेरी understanding है, वो सही है या मैं understanding पे ही गलत कर रहा हूँ, right? First thing, accepting the truth. I accepted the truth कि my weakest area is the VRC section. I had to put in 2x hours as compared to other sections here, and the things might not improve even after putting the 2x hours. And it was not improving at the initial stage. Initial stage is at most difficult, I would say. The score that you want to rise from 5 to 15 and then 15 to 25. This is the hardest phase, because here you are doing a number of things. You are learning new concepts, you are working on the current concepts, you are also stressed about your scores because your percentile is very low as compared to others in this score range, right? But after reaching the 80, after reaching the 25 score, right, a lump sum about 25, 26, 22, right, 22, 26 is the safe range, right? After that you are a bit relaxed because you have confidence, because you are scoring more than the average, right? You already know the concepts, you already know your weakness, your strengths, and you also know what is the right resource. The pain point is 5 to 25 range. If you are in this range, you must be feeling very bad, like the things are not working for you. The first thing I will let you know is what should be your resources for the VRC for the next 100 days, right? About 100 days are left, and to be honest, I believe that 100 days are more than enough. Like, you don't need 100 days, even, I mean, not more than 100 days at least, right? If we have 100 days, so the first and the very most thing that worked for me was the course by the Zizo. I'm not promoting this course. It is what it is. Like, it worked for me. That's why I'm considering this as an option. So if you have this course, I bet that you are in the good hands. You don't need anything else if you have this course. For the people who have this course, I would say this course is very well designed and is exhaustive enough. It won't even give you enough time to do any other thing except this course. So if you have this course, do this course diligently. Rizzo is a faculty of the CL, right? And I took his course like 2 times, and it was very well designed. And Zizo himself put a lot of efforts to build the course and to give you the daily exercises, right? But this is not the only solution. There are other solutions that I will discuss. The second point is, a lot of people will suggest you to read the Aeon essays or JSTR essays, right? I would not say that is a bad option, but I believe that reading only the JSTR or the Aeon essays wouldn't work. The reason being, those are very lengthy passages and those are very hard. At least for me, they are very lengthy and they are very hard. Some people might say that the length of the passages will build your stamina, will build your power to read more and more. I don't need that. I know that the CAT passages are around 500 words. They are mostly based on checking your understanding.
and they are on the medium level, not very hard and not very easy, or maybe very easy sometimes. It happens, right? Why would I focus on the hardest thing? I'm in the learning stage. I will focus on the hardest things when I reach to the advanced stage. From advanced to becoming the expert, I might refer to the hardest things, but in the learning phase, I would refer to the reality check. The reality check is 500 words, understanding your understanding skills and focusing on the medium level passages. Now, what is the resource for this? The best resource is past year papers of the CAT from 2017 onwards. From 2017 onwards. The second best thing is refer to the time mocks. You guys must be having access to the past year PDFs of the time mocks. I will suggest everyone to at least start solving the time mocks or the past year CL mocks. So first priority should be the past year actual CAT papers. The second should be the CL mocks, CL or time mocks. That would be enough material. Start solving. Don't focus just on understanding the passage. Even if you understand the passage correctly, there is no assurity that you will be able to solve at least one question correct. Understanding and solving the questions are very different things, right? So focus on understanding and at the same time solving the questions. This will give you a reality check how better you are at understanding and solving the questions. Just reading the passage from the various sites will not help you to get the score. It might improve your understanding, but I believe in the CAT, not just understanding is required, but what is required is how better you are understanding the passage from the question setter's mind, right? So if I'm the question setter, other would be different from me. I'm creating the questions based on that passage. Are you getting my point? I'm creating the question based on that passage. If your mind and my mind, if our understandings, our thinkings matched, then you would be able to solve all the correct questions correctly. But if our understanding is very different, but your understanding is matching with the other, that won't help you. That will only help you to understand the passage. But if your understanding is not matching with me as a person, as a question setter, then even after reading the passage correctly, you would not be able to solve the questions. That is one funda. So whenever you are trying to understand the passage, understand from the viewpoint of the question setter कि इस passage से question setter क्या questions बना सकता है, right? जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ पैसेज मान लो आ रहा है आपका, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, तो उसमें जो एक होती है ऑब्वियस चॉइस, राइट? ऑब्वियस चीजें जो मेंशन होंगी एक्सप्लिसिटली, कैट विल नेवर आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. कैट जब भी क्वेश्चन पूछता है, इट आस्क्स यू द इम्प्लिसिट थिंग्स और व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दैट पैसेजेस, राइट? सो इफ यू आर रीडिंग सम पैसेजेस, आफ्टर रीडिंग एनालाइज द पैसेज कि यार इससे क्वेश्चन जो क्वेश्चन सेटर ने बनाया है और उसने जो आंसर चूज किया है उसका कुछ पैटर्न दिख रहा है मुझे. बिलीव मी, अगर आप रोज एनालिसिस करोगे एटलीस्ट 2 पैसेजेस का, फर्स्ट attempt the passage by yourself, then check where are you wrong. Focus on all the 4 options. There would be one correct option. Focus why this option is not correct, why this is not correct, why this is not correct, and why this is correct. If you are focusing on all these things, one passage has 4 questions into 4 choices. That means you are analyzing the 16 choices for one passage. And if you are doing 2 passages, then that means you are analyzing 32 choices, right? You are analyzing 32 choices in a day, and that is more than enough. After analyzing 320 choices, that means after 10 days, you will feel that there is a pattern going on. You will obviously feel that there is a pattern going on how the questions are made and how the options are being set. And this is the area, this is the stage where you will start feeling that you are at least improving on your understanding. Marks nahi aa rahe, I know that, but मेरी understanding, मेरा confidence तो boost हो रहा है ना.
For example, अगर आपने after 10 days you start with a mock and you perform very pathetically, very bad, then you analyze the mock and you will feel कि यार अच्छा ऐसा कर रहा है क्या, अच्छा ये तो मुझे आता था, मैंने concepts गलत apply कर दिया, but I know how the question setter solved this thing, right? That is the confidence that you require. Because what would happen on the D-Day, you would be very confused mentally, because you would be very tensed after getting the review from other slots. या अगर आपका फर्स्ट स्लॉट भी होगा तो you would be very tensed कि क्या आ जाएगा यार, कुछ भी आ सकता है. There are lakhs of passages and you would get 4 passages out of that. And the type of mindset you have when you are attempting the mock would be very 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 different when you are attempting the real paper. इतना pressure होता है क्योंकि mock में क्या है, you don't think कि आपको कौन सा question attempt करना है, you literally think it for 10 seconds maybe, but in the actual paper you would be thinking कि यार इसको attempt करूं या नहीं करूं, I would get -1 if I attempt this, should I attempt this or not. So there are a lot of pressures that go on the D-Day. So on the D-Day, helps you the most would be the confidence only. कि अच्छा मैंने इतना पढ़ा है, मैंने 3200 चॉइसेस को एनालाइज करा, मेरे मॉक स्कोर भी काफी अच्छे आए थे. देखो, the only motivation, the only confidence you need is ना, out of the 50 mocks, if you aced VRC section in just 2 to 3 mocks, this is good enough for your motivation. मैंने कभी तो करा है ना, ऐसा तो नहीं है मुझे आता ही नहीं था. अगर मुझे आता ही नहीं होता तो हाउ कुड आई हैव aced the 2 or 3 VRC sections? I have aced 2 or 3 VRC sections because I have skill sets. And अगर वैसा पेपर दोबारा आ गया, कैट में तो कैसा भी आ सकता है. If the paper comes with respect to your strengths, then you would be easily able to score high in the VRC section. So what I require from you people is just be in the process. Don't get demotivated by the low scores or something. This is the part of the process and this is the only pain point in the VRC. So जो VRC में आपने day 1 से start किया and you are getting good scores, so then what's the point of putting VRC in the CAT? अगर सबका अच्छा score आ रहा है, right? You will not even get the percentile if everyone is scoring like you only. So there is a divide gap between the VRC. The people who are already good at the VRC from the school days might be able to score good, but बाकी majority of the लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है. I have a lot of friends who have 99 in quants and the DLR every time they give CAT, but they fail to perform in the VRC. So this happens, right? The first thing is the course of the Zizo. If you are able to purchase it, I would say low purchase, ठीक है. The next thing is the source should be past year mocks, time mocks or the CL mocks. Just solve 2 to 4 passages daily. अगर आप एक mock दे रहे हो, that means you have done 2 to 4 passages. So there is no additional need to solve another 2 to 4 passages. But what I need from you, your side is consistency. I don't want you people to solve 8 passages in 2 days. Solve 4 passages each day and analyze 16 into 4, right? Analyze 64 choices each day. See, what happens is that this is very difficult process. This is very tiring process. You will feel tired after analyzing 10 choices. You will feel that ठीक है यार, ये नहीं होगा तो नहीं होगा. But if you want real improvement, you have to work hard here. And believe me, जब आपका score 10, 15 से 25 आएगा ना, तो आप में जो कॉन्फिडेंस, आपका जो एनर्जी लेवल, आपका जो मोटिवेशन लेवल अलग लेवल का होगा. बिकॉज आपका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ रहा है, आपका सेक्शन भी सॉर्ट हो रहा है. यू विल फील इनफ कॉन्फिडेंस. एंड व्हाट हैपेंस नाउ इन 2 आवर कैट, तो मेरे तो नंबर थोड़े ज्यादा थे, तो मतलब मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट आफ्टर द एग्जाम आई एनालाइज द स्कोर कार्ड ऑफ लॉट ऑफ पीपल. उनका 99%, आई एम शॉक्ड दैट 99 परसेंटाइल शायद 80 पे था, पता नहीं 80 82 पे था, as far as I remember. Matlab 80 82 is like very least number that, I mean, 80 number is something which you or any aspirant can easily score. It is not hard to score 80 marks if you strategize your prep, if you are confident about each and every section. यार देखो 80 marks में if you are solving in the DLR just 2 sets,
और इवन आई वुड से 25 मार्क्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। एंड इन द वीआरसी 25 कर लो, कितना हो गया 50। एंड क्वांट में तो 30 लाइक वेरी इजी, और मे बी 30 इन सम ऑफ इन वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, राइट। if your pain point is VRC, the session is focused on the VRC, तो यार इतना तो मेहनत कर सकते हो ना, to increase your number only, it is not anyone else number। अगर आज मेहनत नहीं करोगे एंड इफ यू आर एडमेंट अबाउट द कैट, अगले साल देना पड़ेगा कैट, अगले साल भी करोगे ना, कभी तो करोगे। इफ यू वांट एडमिशन थ्रू द कैट, then at some point of time you have to do this thing, and this thing would work with majority of you, that I can assure you। देखो, when you contact some mentor or when you ask me for some advice, mentor or me can give you generic advice। I can't tell you how to control yourself, how to motivate yourself। अब मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि यार हाउ कैन आई स्टडी फॉर 3 hours straight, मैं कैसे बताऊं भाई। मतलब everyone has their own skill set, everyone has their own pattern understanding। how can I decide कि how you can study for 2 to 3 hours? Put yourself, guys। Yeah, right। So mainly this is the thing, don't focus on lengthy or hard passages। This is somewhat like not so famous opinion, but I would say don't focus on lengthy or hard passages, focus on 500 words passages, build an understanding of the passages, solve medium level passages, don't focus on too hard passages that might come, one passage can come in the cat out of 4, but even if the hard passages occur, if your understanding, if your path, if your strategy is right, you would be easily able to score at least 2 correct questions, or even if the hardest passage came right your way, then at least your confidence should not be shackled by the hardest passage, it should not be shackled at all, right? If you are confident about your approach, even if you mark all the 4 correct options incorrect, because जब आप पेपर दोगे at the time of the cat, only you want confidence, this is very important। You would realize this thing after appearing for the cat, I am telling you before the cat, because आपको लगेगा कि यार अगर मैंने वीआरसी में कॉन्फिडेंस रखा होता ना, तो मेरा डीएलआर भी अच्छा होता एंड मेरा क्वांट भी अच्छा होता। आप बोलोगे आके यार मेरा वीआरसी खराब हो गया, सिर्फ उस वजह से मेरा डीएलआर और क्वांट और पूरा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उस टाइम आपको रिजल्ट नहीं पता होगा। हाउ यू कैन डिसाइड कि योर वीआरसी गोन वेरी रॉन्ग? जस्ट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग द पेपर, हैव कॉन्फिडेंस इन वट एवर यू आर मार्किंग, and be relaxed at that time during giving the mock or during giving the actual paper। When I appeared for the cat 2022, you know what I was expecting out of the VRC after the paper? Like there was a 10 days gap, and I was just praying to the god that just give me 15 or 20 marks in the VRC, because I was very unsure about my choices। I was very unsure because the section was very tough for me, even for my whole slot it was very tough, and I was very unsure about my choices कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 passages were way harder, वैसा कभी मॉक में भी नहीं आया। I tackled them, I wasted a lot of time on them, but I attempted those passages। I had zero confidence after the paper कि वो मेरे सही होंगे। Even during the paper I was feeling कि I am marking the wrong choices because I couldn't able to understand the language of that passage। And after the paper I was just thinking, having a reality check कि यार नहीं होगा, मतलब मेरा सेक्शन डूबेगा, पक्का डूबेगा। I was like hell sure कि I would be getting lower than the 85 percentile। But when I opened my mark sheet, it shows 46 marks in the VRC। I was way happier। Then I realized that only thing that mattered at that time during giving the actual paper was my approach to tackle the paper। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे टैकल करना है, मुझे कैसे भी करना है यार, अब मेरे पास पेपर आ गया, दिस पेपर वुड डिसाइड माई फ्यूचर।
मुझे इसको ही टैकल करना है. If I become nervous, see, this I have experienced a lot of time. I experienced this hundreds of times in the mocks एंड मैनी टाइम्स इन द एक्चुअल कैट. मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें भी मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था एंड मुझे पता है उसकी क्या कॉस्ट मैंने ली थी. नाउ यू पीपल आर आस्किंग कि वेयर यू वर बैड, राइट, वेयर यू वर बैड. नाउ लेट मी टेल यू, आई अपीयर्ड फॉर द कैट 2021. I got 64 percentile in the DLR. Just 10 marks in the DLR. Do you think that I was this bad or I was underconfident? All I did in the paper, in the DLR section in the CAT 2021, I lost my composure. I was not able to solve the first set and I lost my composure at that time. And from that time, my bad luck started. I didn't have bad luck. I forced myself to bring that bad luck at that point of time. That is the pain thing. Had I been the calm guy uh, in the exam hall, right? Had I been the calm guy in the exam hall, I would have received a different percentile. I was expecting at least 99 percentile in this section, but when I opened my score sheet, I was amazed to see 64 percentile. Like it was not even a shock. It was like कि CAT वालों ने शायद गलत मार्कशीट तो नहीं निकाल दी. But then I saw what I did and why I did. So that is the only point, that I don't know your skill set, but your skill set would be helpful only if you maintain your composure. I had skill set in 2021, but I was very weak at maintaining myself. मैंने एक VRC का गंदा पैसेज देखा, मैं पूरा मतलब नर्वस हो जाता था. I started shivering, but then I said to myself कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर मैं वैसा ही रहता ना तो in even 2022 my VRC would have bumped down. वो हुआ इसीलिए नहीं because I restricted myself to maintain the composure. मुझे कुछ भी होता था ना, I had 1 liter water bottle, मैं थोड़ा पानी पी लेता था, उससे मुझे, that was my approach. It might be different for you. आप 2 मिनट आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं होगा 2 मिनट से, क्या ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप 1 मिनट भी रिलैक्स करोगे ना, आपका एक क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है. बट जो एक्यूरेसी आएगी ना, वो बार बार अपने को कंपोज मेंटेन करके रखने में, कि यार तू अपनी अप्रोच सही लगा रहा है, आंसर तुझे भी नहीं पता, राइट. हमें यार वी आर सो पैसिमिस्टिक ना, हमें लगेगा कि हो जो हम कर रहे हैं वो तो गलत ही होगा बेसिस ऑन द पास्ट रिजल्ट. बट आई हैड जस्ट वन थॉट दैट मिरेकल्स डू हैपन एंड इट कैन हैपन विद एनीवन, राइट. यू डोंट नो व्हेन द मिरेकल वुड हैपन एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम विद यू, ठीक है. बट बिफोर दैट, दिस इज द थॉट ऑफ द डी डे. डी डे के पहले जो तुम्हें करना है वो, यू हैव टू पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू इंप्रूव योर स्कोर. नॉट सेइंग कि go with bad scores and sit in the exam hall. Don't do that. Your major focus, your only focus should be at least score 25 consistently in the VRC. And the only step, I am fixing your resources. Don't jump here and there. I know majority of you would now jump to some other resources, jump to some other mentors, because उसके 100 percentile होंगे VRC में. देखो mentorship and actual percentile are two different things. एक 100 percentile वाले बंदे का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, उसके लिए कुछ चीजें अलग वर्क करी होंगी. That doesn't mean that would also work for you. I'm just describing all these things from a viewpoint of normal candidate, normal aspirant, ठीक है. मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये करो वो करो ये करो वो करो, सिर्फ ये पार्ट पे फोकस करो एंड कीप डूइंग दिस वुड बी मोर देन इनफ फॉर एनी टाइप ऑफ पैसेज, ठीक है. अब इसमें भी ये है कि आप जैसे अलग अलग रोज रोज पैसे ट्राई करोगे, आपके पास अपने आप ही वैरायटीज आती जाएंगी पैसेज की. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट थिंग इज VA. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज लेस टाइम टेकिंग. कभी कभी कोई तुक्का भी लगा दो थोड़ा ओवरऑल देख के. एंड दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट what I would say, most painful thing, because
if you are not able to score in the VRC, your overall marks would be lowered by a major extent, by a large extent, right? Why I am saying this is, again, a reason. I had just one incorrect in the complete VRC section in the CAT 2022. And this thing helped me to boost my overall VRC score and the overall score. पल्लव, Yeah. आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, मतलब लाइक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे हाँ, आपके? just I am opening the floor for the Q&A. Just be patient, you know. Right. Just be patient. So the thing is that for VA, I was not very good at it, but over the time I improved at it because I gave VA equal importance as I was giving to the RCs. बहुत लोग होते हैं VA को बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा पैरा समरी है, इसमें तो मतलब कुछ मैं लगा दूंगा, वो सही भी हो जाएगा, वो गलत भी हो जाएगा. नो, दिस डजंट वर्क. You should put in hours for VA also. There are strategies to solve VA part. For the para summary, you have to find the extreme words. Those extreme words can never be the option. You have to understand the para summaries. You have to understand the para jumbles, right? How the order is structured, why this is the answer, why बहुत बार ऐसा होता होगा ना, why this is correct, why my choice is not correct. Focus on that, give time to that. See, the important thing is आप जिस चीज को टाइम दोगे वो ही आपको रिवॉर्ड देगा. आप VA को टाइम नहीं दोगे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द VA. Odd one out may be simple procedure, it is more similar to the para jumble only. You have to understand the context of the whole thing and then you have to decide. बहुत बार ये होता है कि the people who have not practiced enough, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा मिलता जुलता आंसर होगा, वो मार्क कर दूंगा, और उनका बहुत बार करेक्ट भी हो जाता है. बट दैट डजंट गिव यू श्योरिटी ना. मुझे तो श्योरिटी चाहिए. मुझे ये चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं. बिना श्योरिटी के मैं क्या जाऊंगा? सोचो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं VRC में, आपको श्योरिटी नहीं है, आपका एक ही दिन खराब था और कैट वाला दिन था वो, एंड देन यू फक्ड अप कैट, फिर क्या होगा, राइट? सो ब्रिंग श्योरिटी टू वट एवर यू आर डूइंग. ब्रिंग एटलीस्ट मिनिमम श्योरिटी यार, मतलब एटलीस्ट इतनी श्योरिटी लाओ कि आपके 90% आए. ठीक है? उससे क्या है कि you would be at least confident about at least 90 percentile. 90 percentile भी नहीं, 85 percentile. Most of the IIMs have cut off of 80 percentile for the general category, right? जनरल कैटेगरी की 80 परसेंटाइल कट ऑफ है, तो 85 90 का अगर आप श्योरिटी है तो आएगा. ऐसा नहीं है कि कैट में कुछ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. कैट वुड बी इजियर, अ लिटिल इजियर, नॉट वेरी इजियर. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, कैट बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं होता. कैट भी उतना ही टफ रहेगा, बट आपको अगर मॉक्स में कंफर्टेबिलिटी आ गई है तो योर कैट वुड बी नॉट दैट डिसकंफर्टेबल फॉर यू, राइट? नाउ आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर द क्वेश्चन सेशन, सो you can also unmute, but don't make it a fish market. Come one by one, or maybe raise your hand and then accordingly decide who will be speaking first. Or you can also put the questions in the chat also. I would be happily listening to you guys if you can unmute yourself and speak up. Just see the order of the hands raised and keep coming. Yeah. Hi, Pallav. Hi. Pallav, can you please tell us your mock taking strategy? Means the timeline for the VRC. Is it Sure. for VA See. first, then RC? Yeah. Okay. So let me tell you, my mock strategy is very different from majority of you guys, and it doesn't mean that I am unique or something. It just means that I never focused on the mock strategy for the VRC. I did focus, but I have my own strategy. So don't try to copy or implement this strategy if you feel uncomfortable in this strategy, right? There are hundreds of friends of mine, and all of them have different strategy depending on who you are, what your past experience and everything. ठीक है? So let me tell you what my strategy was. So from the first day, I didn't know that people also attempt 3 passages, 2 passages, 1 passages or something like that. I literally didn't know about this कि ऐसा भी हो सकता है. मतलब you are just giving up on the 4th passages ऐसे ही. मतलब this is just my view, right? ठीक है?
मुझे कोई चीज हाथ से निकलती हुई पसंद नहीं है. So my strategy was to attempt 1, 2, 3, 4 all from my first attempt. ठीक है. And also to attempt the complete VA section. This strategy backfired me multiple times. Reason being, here I had a lot of time pressure because I have to complete the paper in stipulated time so that I have time for VA also, right? And due to that time pressure, I couldn't understand passages very clearly. And due to that, I often used to choose the incorrect options. Same happens with VA. And this led to my low VARC scores, very low. But again, I was not I was not at all aware that people leave 1 or 2 RCs. I literally was not aware. So I didn't have much choices. Pallav, So like you, just wait, let me complete. I didn't have much choices to do any other thing rather than attempting the complete VRC section. So I played with the time. So how I played? I used to complete the 4 passages in 28 minutes and the VA in 12 minutes. This is the hard stroke. If the RCs are very hard, very hard, then max I can devote is 30 minutes to this and the rest 10 minutes to this. Okay. So what usually happens that I was not even aware that people do choose the passages. Like I was the person who couldn't identify before reading the complete passages ki which passage is easy and which passage is hard. So my approach was very basic, is to attempt the passage in a sequence. जो फर्स्ट स्क्रीन पे आया मैं फर्स्ट करता था, जो सेकंड आया सेकंड, थर्ड आया थर्ड, फोर्थ आया फोर्थ. द रीजन फॉर दिस इज दैट I got after multiple attempts, after multiple rounds of practice, is that if I get the first passage very hard, there must be easy passages lying beyond that. Second, third passage easy हो सकता है, or maybe if second passage also appears to be very hard, then I am 100% sure, based on my practice, the third and fourth passages can't be of the same level. It must be medium or the easiest ones, right? So my strategy was to attempt the fourth. How did it matter to first do the easiest one, then do the hardest one? I have to attempt the four. I don't have any choice. So my order was very clear. First, second, third, fourth. Around 8 to 9 minutes I used to give in this. Same 7 to 8 minutes in this, 8 to 9 minutes in this. Then जो fourth passage था ना, irrespective of its difficulty level, I had to sometime do it in the 6 to 7 minutes. That was like very challenging, but I had to do it. And sometimes I end up making the incorrect option. Okay, but I had to do it. I had no other options. Same for the VA. VA, I used to give a lot of time to the starting questions, but at the end up, I used to end up messing some of the questions. But VA में मेरा strategy थोड़ा different था. I used to prefer doing para summaries first. जितनी भी पैरा समरीज थी पहले उसको करता था. ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता था. पैरा समरी नहीं दिखी नेक्स्ट, पैरा समरी नहीं दिखी नेक्स्ट, अगली बार पैरा समरी दिख गई तो उसको पढ़ा और किया. यू डोंट हैव टाइम टू सिलेक्ट और डीसिलेक्ट ड्यूरिंग द VARC सेक्शन इफ यू आर वीक एट इट. ठीक है. PS के बाद आई यूज्ड टू डू PS, PJ एंड ओड वन आउट. ये तीन होते थे ना. देन आई यूज्ड टू डू PJ एंड देन ओड वन आउट. ये मेरा प्लान था VA में. मैं ऐसे बंचेस में करता था. पहले सारे PS कर लिए, फिर PJ कर लिए, फिर ओड वन आउट कर लिया. ठीक है. और बेसिकली ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि द थिंग्स कम अप व्हेन यू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बिना कोई भी मेंटर कोई भी कुछ बोले तुम्हें नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारा इंप्रूवमेंट उससे नहीं आएगा. प्रैक्टिस से ही आएगा. आफ्टर प्रैक्टिसिंग आई गोट टू नो कि यार जो मैं सारे अटेम्प्ट करता हूँ ना, उसमें कुछ इतने फालतू क्वेश्चंस होते हैं ऑफ व्हिच आई वाज वेरी अनश्योर एंड स्टिल आई अटेम्प्टेड दैट. आई शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग दैट इन फर्दर mocks, right? So what I changed my strategy. Out of the total questions, 22 questions, no, 24, right?
Out of the 24 questions, I started doing 21, 22. एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ देता था, of which I was not very confident. But मेरी strategy ये थी, your can be very different, and I would suggest everyone to try out different strategies of different people and choose the strategy which suits you most, or build a new strategy of yourself. Like in my case, I was not focused on anyone else's strategy. I was just focused on myself. I knew that VRC was my weakest area, and I just focused on improving it, nothing else. Hello, Next Pallav. question. Yeah. Hello, Pallav. Can you just tell like how you used to solve a specific RC? Like if you came across a very hard RC, which took like 10 minutes, for example. So what was your approach to tackle such RC? And Yeah. more important than tackling, how you solved that RC, like a pattern, like how you solved Okay, that. so there are two things. Again, I'm repeating this. First is the understanding of the passage, and then second is the selecting the right choices. Both things are very different because passage is written by the author and the questions are made by the question setter. ठीक है? What I knew was that मैं passage को कितना भी clearly पढूं, कितना भी understanding से पढूं, I might not be able to solve every question. I might not able to solve even at least one correct question. So my funda was that कि मैं 3-4 मिनट दूंगा एटलीस्ट, मतलब 3 मिनट में शायद पढ़ पाता था, 3 मिनट में, राइट? हाँ, 3-4 मिनट दूंगा पैसेज को, or I might give some 5 minutes to the passage. If I'm not understanding the passage in 3, 4, 5 minutes, I will not be able to understand even in the 10 minutes also. Because passage पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है. 10th क्लास का बच्चा उसको समझ आता है. You all are very good at understanding. आपके मार्क्स नहीं आ रहे, that doesn't mean that you are poor at understanding the passage. No, you are good at understanding the passage. मैं आपको एक जोनी जोनी पापा की poem दे दूं, you all would be understanding that poem, right? But मैं उसके क्वेश्चंस दूंगा ना, you might end up solving like all 4 questions incorrect. So the problem is how to solve the question. तो मेरा फंडा बहुत क्लियर था. मुझे आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी आ गई थी कि क्वेश्चन सेटर किस टाइप का किस पैसेज में क्वेश्चन बनाता है. जनरली हार्ड पैसेजेस में यू जस्ट नीड अ थीम, यू जस्ट नीड अंडरस्टैंडिंग. जैसे देखो, अगर आपको रामायण, मतलब जैसे हाउ डू आई टेल, okay, so you watch Ramayan or some movie or something else for like जब अभी सीरीज आ रही है, राइट? तो Amazon में आपने कोई 12-13 घंटे की सीरीज देखी, where you focus on that, you focus on understanding the context, understanding the theme, understanding the nature of character. Do you focus कि उसने कौन से कलर की कॉफी पी थी, या उस टाइम जब ये हुआ था तो क्या टाइम था, या कुछ इतने माइनर डिटेल्स द कैट नेवर आस्क्स. What they want from you is a broad understanding of the thing and उसके पीछे का रीजन क्या हुआ होगा, because most of the questions are inference based, right? The next thing I would say, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो inference based भी होगा ना. तो ऐसा बहुत टाइम बहुत मेंटर्स ये बोलते हैं कि inference based क्वेश्चंस में कुछ डाटा बाहर का आएगा, आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा. No, this is complete wrong. If you attempt like that, you will be getting all incorrect answers because your data is very limited. Your data is this one, right? अगर पैसेज में कहीं ये बोला नहीं है कि what I would say, जैसे हाँ, smoking is injurious to health, we all know that, but if it is not mentioned in the passage, don't assume this thing. Don't assume this thing. This is your only data set. Read this, infer from this. कुछ अपना दिमाग लगा के, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज लगा के इन्फ्रेंस नहीं करना है. जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि I can't explain like this, but question में our understanding is very different from what the question setter is asking. क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते हम. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी एज्यूम मत करो. डाटा, हाँ, मेरा जो मैं करता था, देखो आप भी बहुत लोग करते होगे, एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन. बार बार पैसेज को पढ़ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बिकॉज यू आर नॉट इनफ कॉन्फिडेंस कि आपको पूरा अच्छे से याद है. दैट इज कंप्लीटली ओके. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज टाइम. मैं इसको 3 मिनट में पढ़ देता था, मैं 5 मिनट क्वेश्चन सोल्विंग में लगाता था, है ना? आप ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट इसको दो और 3 मिनट में क्वेश्चन कर लो. इट्स कंप्लीटली ओके. तो मेरा अप्रोच यही था. आई वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन द क्वेश्चंस rather than being too focused on the
stuff which is given in the paragraph. Just read it pleasurely, but have a complete understanding. Like if there are four paras, 1, 2, 3, 4, after every para, just try to correlate the things. Like अगर second para के बाद तुम्हें पता नहीं लग रहा कि first second para का क्या sense है, jump back to the first paragraph, read fast, come to second paragraph. Even if then also you are not getting idea, just build a understanding. थोड़ा कहानी सोचो यार, क्योंकि देखो जो भी उधर लिख रहा है ना पैसेज, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं हार्ड पैसेज लिखूं फिर कैट के बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे. नो, द पैसेज रिटन बाय द ऑथर इज फॉर जनरल ऑडियंस. उसका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चे पैसेज को अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड करें पैसेज को, राइट. इफ यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, देन जस्ट ट्राई टू थिंक कि उसने क्या मतलब क्यों लिखा है, क्या स्टोरी बनी होगी. तो देयर विल बी अ स्टोरी फॉर दैट. और अगर फिर भी नहीं आ रहा ना कुछ समझ, तो एक बार जनरली पूरा पढ़ लो, गिव अप मत करो, पूरा पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ. 4 क्वेश्चंस मे बी नाउ, 2 क्वेश्चंस पक्का हो जाएंगे. But again, these things you would understand by yourself when you start attempting the mocks or the VRC sections, or when you start doing the practice, right? Next question. अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, like when you are reading the passage, और फिर अगर समझ नहीं आ रहा, तो फिर how should you approach the questions? Because अभी जो मैंने आज ही मॉक दिया, फॉर एग्जांपल CL का CDC3, तो उसमें पहले तो मेरे अटेम्प्ट्स 24 नहीं हो पा रहे, मेरे 16 अटेम्प्ट हो रहे हैं, Okay. RCs एंड रेस्ट VA. देखो अटेम्प्ट का तो मैं देखना ही नहीं है. देखो मैं तो ये सोचता था कि जैसे आउट ऑफ 24 कोई बंदा 10 करके भी फुल एक्यूरेसी के साथ 30 ला रहा है, मैं 24 करके भी मेरा 15 स्कोर आ रहा था. ये तो और भी बुरी बात है ना. मतलब तुम हवा में लगा रहे हो. अब यू सेड आपने 16 अटेम्प्ट किए, आप करने को 24 नहीं कर सकते थे, कुछ भी रैंडम मार्क कर दो, उसमें भी सही हो, मतलब आपका स्कोर क्या पता है उससे बढ़िया ही आ जाए. उसका कोई सेंस नहीं है ना. दिस इज स्लो प्रोसेस. अगर आज आप 24 आज ही करोगे, तो व्हाट वुड यू लर्न इन द अपकमिंग मंथ्स. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज यू आर सेइंग कि आपका कहाँ दिक्कत था. आई एम नॉट गेटिंग यू. समझ नहीं आ रहा था जब मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग द पैसेज, मैं बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा था, बट दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था. हाँ ठीक है. तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ पैसेज, क्या था उसका? साइंस पैसेज था, हिस्ट्री पैसेज था, व्हाट वाज दैट? मतलब भाई बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिकॉज उसका भी एनालिसिस आउट नहीं हुआ. 3 दिन का पीरियड होगा, मैं बता दूंगा मैसेज करके आपको. नो इश्यूज. बिल्कुल तो देखो बिल्कुल याद ऐसा नहीं कुछ, है. हाँ ऐसा कुछ पैसेज होगा. देखो जस्ट फोकस ऑन, अगर जब भी वो पैसेज बाहर आएगा या कोई भी पैसेज हो, आपको पूरा समझ नहीं आ रहा, ठीक है, द थिंग माइट हैड हैपेंड विद यू. आपने एक गो में रीड किया होगा, या आपका फर्स्ट पैराग्राफ से दिमाग खराब हो गया होगा, और दैट इफेक्ट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग व्हेन यू मूव टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ. और फिर एक पॉइंट के बाद लगा होगा कि यार दिस इज नॉट वर्किंग एंड दिस माइट नॉट वर्क फॉर मी. ठीक है, ऐसा लगा होगा. ठीक है. अब उसके लिए देखो, अगर आपके पास, अगर आपको मतलब दिस ओनली डिपेंड ऑन योर प्रीवियस प्रैक्टिस में अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मैं कोई भी पैसेज को छोड़ूंगा नहीं, टैकल तो करूंगा, लड़ूंगा उससे. ठीक है. तो देखो यहाँ पे पूरा पैसेज नहीं समझ आया होगा ऑब्वियसली, फिलोसफी का होगा, किसी का भी होगा, कोई नई टर्मिनोलॉजी होगी. ठीक है. बट कुछ कुछ आपको समझ आया होगा. ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ कुछ समझ आया होगा, जो जो समझ आया ना, सिर्फ जो जो समझ आया, सिर्फ उसको कोरिलेट करने का ट्राई करो, एंड फिर पूरा पढ़ो. फिर आपको कहानी पता लग जाएगी. देखो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब बहुत ही अजीब सा पैसेज आ गया, बट मुझे समझ आ जाता था थोड़ा थोड़ा. मान लो यहाँ पे कुछ उसने लिखा है, ए ने बी को, ए किल्स बी और ए किल्ड बी. ठीक है. अब मुझे पता लग गया यहाँ से कि ये स्टोरी, ए ने कुछ बी के साथ बुरा किया है. ठीक है. और ए यहाँ पे क्या है, मतलब बी इज द सफरर एंड ए इज द वन हु इन्फिक्टेड पेन ऑन द बी, राइट. अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना, यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा जो भी चीज मुझे समझ में आ रही कि अगर ये नेगेटिव चीज है तो ये ए से रिलेटेड है, और अगर कोई सपोर्टिव चीज है, अगर कोई जस्टिस की बात हो रही है, तो दैट इज बीइंग सेड फ्रॉम बीज फैमिली, राइट. ऐसा ऐसा कुछ देखो, इट्स कंप्लीटली अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड इट. जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा है, तो आप 100 जगह मुंह मारते हो कि यार मुझे कैसे भी समझ आ जाए. बस आपको ये नहीं भूलना कि आपको समझ आएगा ही नहीं, है ना. जस्ट रिमेंबर कि आपको समझ आएगा, चीजें टाइम लेंगी. बट आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप सीएल का मॉक दो, आपको समझ आ जाए, बिकॉज आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. अगर आपने प्रीवियसली इतने हार्ड डिफिकल्टी लेवल पैसेज के अगर 50 पैसेज सोल्व किए हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको ये समझ आ जाएगा. इट्स मोर अबाउट योर प्रीवियस लर्निंग से ही हेल्प होगी. नई लर्निंग वहां पे ना तो अप्लाई होगी, और ना ही कोई नई अंडरस्टैंडिंग वहां पे बिल्ड होगी. ठीक है. तो दैट इज द थिंग. अगर नहीं आ रहा तो नो इश्यूज. ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग गाइज,
जो सीएल के पैसेजेस हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट के पैसेज है ना, जो फिलोसफी बेस्ड पैसेज होते हैं ना, उसमें 4-5 टाइप्स की फिलोसफीज चलती रहती हैं। मतलब आई कांट रिकॉल द नेम्स, 3-4 आपको फिलोसफर्स के नाम कुछ ज्यादा ही रिपीट होते हैं। कैन एनीवन टेल मी? सर एक वन में कार्ल मार्क्स, सोशियोलॉजी, सोक्रेटिस, प्लेटो कम्युनिज्म, और डेस्कार्टिस और आप मतलब काफी सारे हैं। एरिस्टोटल। ठीक है, Socrates and someone like that. Socrates का तो लास्ट ईयर Socrates- पैसेज भी आया था. हाँ, The देखो, communism, around नहीं, sociology. that is the type of passage. I am listing out the name of philosophers. फिलोसफर्स के कुछ नाम आते हैं ना, फिलोसफर्स की कुछ फिलोसफीज होती हैं, लाइक Yes, sir. कैंट की आप पढ़ लेना, ठीक है। एंड देखो अब जैसे सोक्रेट्स का ना मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था, मुझे अब भी आइडिया नहीं है, बट आई हैड एन आइडिया आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसेजेस कि यार ये सोक्रेट्स क्या जाते हैं बीच में, इनका ट्रेट क्या है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कंप्लीट लिस्ट पढ़ो, बट अगर आपका फिलोसफी में अगर कुछ आ गया ना, जैसे कैंट, सोक्रेट्स, क्योंकि देखो एग्जाम्स में अगर आएगा भी ना, तो आपको एक्सप्लेन करेगा वो 2-3 लाइन में कि इसकी फिलोसफी क्या है, सोक्रेट्स की फिलोसफी क्या है, बट वो ना कभी कभी लैंग्वेज फिलोसफिकल होती है, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है, समझ नहीं आएगी। इफ यू हैव प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट एक लोग का भी है, अगर मान लो आपके, आई एम नॉट जस्ट सेइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बस इफ यू आर सोल्विंग द पैसेज, कभी आपका कोई फिलोसफर का नाम आया तो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट कि अच्छा ये बंदा ये कह रहा है ना, सोक्रेट्स ये कहते हैं जनरली, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको आपका पेन थोड़ा कम कर सकता है, बट अगर इसको नहीं भी करोगे दैट इज कम्प्लीटली ओके। ऑल आई जस्ट वांट फ्रॉम यू इज हैव ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस डेली। आप नोट्स बनाते थे लाइक व्हाइल रीडिंग द पैसेज, नोट्स बनाते थे कि यार मुझे चीज याद। आई यूज नोट टू बी, क्योंकि मेरा उससे पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था, दैट इज लाइक जस्ट माय एक्सपीरियंस, आई ट्राइड इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइस, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, if that is working for you, then go for that. पल्लव, Yeah. भाई एक्चुअल में क्या है ना, जैसे वीआरसी सेक्शन में आप बोल रहे थे कि 25-26 तक का स्कोर है, सो लाइक कंसिस्टेंटली तो अच्छा खासा रहता है, लाइक 25 प्लस ही रहता है मेरा तो। बट प्रॉब्लम मेरे को कहाँ पे आता है ना, जैसे वीए सेक्शन में व्हेन वी आर टॉकिंग, तो मेरा क्या होता है, जैसे वीए सेक्शन में देयर इज अ हैंड, आप कहते हो ना कि एक कुछ चीजों में आपका अपर हैंड होता है, तो जैसे वीए सेक्शन में आई हैड एन अपर हैंड इन पैरा समरीज, आई हैड एन अपर हैंड इन दी कंटेक्सचुअल थिंग्स, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिला हुआ होता है। फॉर एग्जांपल पैरा समरी हो गया जहाँ पे आई जस्ट हैव टू समराइज द टॉपिक, और पैरा कंप्लीशन है जहाँ पे मेरे को वहां पे सिर्फ फ्रेम आउट करना है कि अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो आएगा, तो या फिर ऑड वन आउट हो गया, तो मेरे को कंटेक्स्ट मिला हुआ रहता है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ना कहाँ पे क्रिएट होती है, जैसे लाइक पैराजंबल आ गया, तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू क्रिएट मैंडेटरी पेयर्स या ट्रायो क्रिएट हो जाता है, बट इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगा पैसेज में, वो नहीं समझ आता, उसका कोई ट्रिक है क्या? देखो देयर इज नो ट्रिक, वो होता है, वो प्रॉब्लम रहेगा, एंड इवन इफ आई हैव टेल यू कि ऐसा कर लो, तब भी ऐसा हो सकता है कि आंसर माइट बी वे डिफरेंट फ्रॉम दैट आल्सो। उसमें बस यही है कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो पुट कर रहे हो, आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, आपका 100 टाइम्स में अगर 80 टाइम्स सही जा रही है वो चीज, 20 टाइम्स गलत है, तो लेट इट बी, बिकॉज वीआरसी में ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। अगेन देयर कैन बी मल्टीपल करेक्ट आंसर चॉइसेस आल्सो व्हेन इट कम्स टू द पैराजंबल, बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन कि वो वहां पे कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज समटाइम्स क्या है कि देखो जनरली पैराजंबल जो एकेडमिक रेट होते हैं वो एक पूरे पैसेज या बुक से कुछ पार्ट उठा लेते हैं, वो पुट कर देते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कैसे पुट हो रहा है, क्यों पुट हो रहा है, क्योंकि जो बुक का कंटेक्स्ट है वो तो आपके पास है ही नहीं, यू हैव जस्ट 4 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू पुट दैट इन ऑर्डर। बस उसमें यही है कि वहां पे डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ओवर थिंक से कुछ नहीं होने वाला, आप 50 बार उसको सोचोगे बार बार, दैट डजंट मीन कि आपके पास करेक्ट चॉइस आएगी। तो जो भी फर्स्ट क्लिक होता है ना, जो आपकी एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है माइंड में कि ऐसा करने से ऐसा होता था, वो अप्लाई कर दो, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द पेपर जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि आप देखो व्हाट व्हाई आई एम रिपीटिंग द कॉन्फिडेंस वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बार ये होता है ना, बहुत बहुत मतलब दिग्गजों के साथ, जिनको था कि मैं तो कैट फोड़ ही दूंगा, और इवन द जो कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ टारगेट ही 70-80% करना है, उसके साथ भी हो जाता है, जो उसने इतनी मेहनत की होती है, लाइक
you are preparing for 7-8 months for the just one exam. आपने वहां पे अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस दिन में, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है. Your way of behavior, your strategy, everything would change. That should not be changed because you gave 7 to 8 months to build just 40-minute strategy. कोई छोटू मोटू फैक्टर से 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उस वजह से आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है यार. दिस इज लाइक वेरी अनफेयर, है ना. अब No, यहाँ पे I completely understand it because last year मेरा भी ऐसे ही हुआ था. Like देखो, जैसे आपका जो 21 वाला अटेम्प्ट था, मेरा 22 का अटेम्प्ट इस तरीके का हो गया था. देखो यहाँ पे जो अहमदाबाद में बच्चे हैं, everyone has a different story. तो एक मेरा दोस्त है, he has appeared for CAT 21, right? Now he is my senior. In the सर first इज इट 20, पॉसिबल कि कैट फर्स्ट टाइम में निकल सकता है? हाँ, मतलब अगर तुमने गलती नहीं की तो निकल सकता है. I did mistakes. मतलब I didn't mistake. I had 99% in the first attempt. My aim was different, तो इसलिए I had opportunity, तो मैंने reappear करा. But देखो, cat निकलना is not a big thing, and if you are a girl, it would be very easy for you. And सर this is on your, आरसी की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? मतलब हम यार अभी तो ओजवाल की बुक से करनी चाहिए कि अरुण शर्मा बुक इज एनफ? I told this ना, first, second. Oh, sorry sir, I joined late. हाँ, you will get a recording for that. I resolved that issue. No issues for that. तो उसमें आप देख लेना. हाँ, देखो, first attempt, it doesn't matter. You just need 3 to 4 months of serious prep. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 3-4 मंथ्स दे दोगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे, सेकंड में दोगे, सेकंड में निकालोगे, थर्ड में दोगे, थर्ड में निकालोगे. बाकी it depends on paper also. उस दिन क्या पेपर आता है, it highly depends on that also. What I was explaining to you guys is, one of my So you are friend, telling a story of your friend. yeah. Yes. So he was like very good in the mocks, right, है ना. But cat day पे उसके साथ पता नहीं क्या हुआ. He was numb for the first 20 minutes in the VRC. Numb मतलब he even didn't read anything. उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो पढ़ रहा था. But he didn't give up. उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या पढ़ रहा था, but he didn't give up. ठीक है. उससे लास्ट के 20 मिनट्स में 3 पैसेज फोड़े और VA फोड़ा. उसका डिसेंट परसेंटाइल आया कैट VRC में. उतना अच्छा नहीं आया, बट इतना आ गया कि उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई. ठीक है. एक बंदा था, उसने DLR 20 मिनट्स, उससे DLR हुआ ही नहीं. He used to be a DLR topper, उससे DLR हुआ ही नहीं. In the next 20 minutes he cracked 3 sets. देखो why this happens. क्योंकि देखो जब क्या होता है, जब एग्जाम होता है ना, कोई भी रिटन एग्जाम, we know the stuff what we want to write, but sometimes जब 5 मिनट रह जाते हैं तो हमारा हाथ कितनी जल्दी चलता है, सब कुछ कितना जल्दी होता है ना. This happens here also. If you know you can do, you will be able to do even in the 30 minutes, 20 minutes also, है ना. तो just carry your confidence, and before carrying the confidence would not be. देखो confidence ये नहीं कह रहा कि मैं, आप कोई वीडियो देख लोगे, मेरी बातें सुन के आपको लगेगा मैं कर दूंगा, नहीं होगा वैसे. अभी आप जाके अभी इसके बाद भी मॉक खोलोगे ना, आप उतने ही लेजी फील करोगे, आप उतना ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उतनी, है ना. तो वो प्रैक्टिस से ही बिल्ड होगा. जो भी बिल्ड हो रहा है. देखो मेरे में भी, देखो VARC में किसी को नहीं पता होता. Anyone who is here or anyone who has scored enough good percentile at one point or even before the start of actual CAT, I am literally 100% sure कि 90% जनता अनश्योर होती है अपने VRC मार्क्स के लिए, बट उनके पास कॉन्फिडेंस होता है. वो ऐसा नहीं होता कि यार VRC होगा ही नहीं. जस्ट चेंज योर वर्ड्स. आई वांट दैट मूवमेंट फ्रॉम योर साइड, जब आप बोलोगे यार VRC तो हो जाएगा. कितना होगा, कितना अच्छा होगा, आई डोंट नो, लेकिन हो जाएगा. नाउ व्हाट वी से कि VRC नहीं होगा, VRC वर्क नहीं कर रहा. समझ रहे हो दोनों चीजों को. वो वर्क नहीं कर रहा और वर्क कर रहा है, उसका डिफरेंस सिर्फ प्रैक्टिस क्रिएट कर सकती है. देयर इज नो स्ट्रेटेजी. और बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये कोर्स ले लें, ये कोर्स ले लें. देखो कोर्स कोई भी ले लो, है ना. ऑल आई वांट कि कोई गंदा कोर्स मत लो जहाँ पे टीचर अपने एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा. लेकिन दैट डजंट मीन कि आप सही कोर्स लोगे तो आपका परसेंटेज आएगा ही, या आपकी चीजें वर्क करेंगी. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव दैट कोर्स. सर कोर्स में अभी क्या, हमको हाँ, अभी हमको सर इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना चाहिए कि पहले अपना कोर्सवेयर और सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना देखो चाहिए? पैरेलली चलना चाहिए, बिकॉज कोर्स में जो मटेरियल डिजाइंड होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कैट गिव्स. कैट का आइडिया आपको होना चाहिए ना. मैं नहीं चाह रहा कि आप 1 महीने पहले कैट की बुक्स खोलो और आपको पता लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देन यू वुड नॉट हैव टाइम टू रीफ्रेम योर स्ट्रेटजीज.
राइट। तो सर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस अभी हम कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमको पहले से मतलब वो आइडिया सब हो जाएगा DILR का कि किस किस तरीके के हम सेट्स पहले सॉल्व कर लेंगे तो? देखो दैट यू देखो आपको आइडिया नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स आल्सो यू वुड फील कि हर पेपर ही डिफरेंट है। हाँ जी। DILR में हर पेपर ही डिफरेंट है, तो यू वुड रियलाइज कि जो मैं अभी तक कर रही थी, मतलब मैंने तो क्यूब्स का फॉर्मूलेज पढ़ लिए, मैंने तो अरेंजमेंट रट लिया, वो सब तो आ ही नहीं रहा। मैं तो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रही हूँ, बट मेरा पेपर प्रीवियस ईयर देख के तो पसीना ही छूट रहा है। देन यू वुड रियलाइज कि आई हैव 3 months, आई कैन डू समथिंग। बट आप 1 महीने पहले उसको खोल के देखोगे, पूरा आपको एकदम नया चीज लगेगा, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा टू इम्प्रूव, है ना। तो एटलीस्ट हैव द रियलिटी चेक, पूरे पेपर देख लो, एक एक दो दो मतलब 2-3 हफ्तों में, इस महीने मतलब टिल द मिड ऑफ सितंबर, जस्ट मेक श्योर यू एटलीस्ट हैव सीन ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम 2017 onwards। सर तो उसकी लिए प्रैक्टिस कैसे करें DILR की? देखो DILR की प्रैक्टिस के लिए, DILR की आई वुड डिस्कस इट इन द DILR सेशन। अभी रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द VRC। ठीक है। भाई एक पिछले क्वेश्चन पे ना एक कंटिन्यूएशन में एक और डाउट था, या लाइक आरसी के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा स्ट्रैटेजी का जस्ट एक क्वेश्चन था कि इज इट अ करेक्ट स्ट्रैटेजी और नॉट। सो व्हाट आई रियली फोकस ऑन इज कि यार पर्टिकुलरली अगर जैसे कोई आरसी में अटेम्प्ट कर रहा हूँ या पूरा सेक्शन मेरे सामने खुला फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो व्हाट आई ट्राई टू डू एट इनिशियल 5 minutes इज कि यार स्किम कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे को कौन कौन से आरसीज अटेम्प्ट करने हैं और किस और मतलब फॉर मी व्हाट वर्क्स इज, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं खटाखट खटाखट 1 to 4 वाले जो आरसीज थे वो सारे अटेम्प्ट करता था, हाँ बट फॉर मी व्हाट वर्क्स इज कि जैसे लाइक मैं ये बना लेता हूँ कि मेरे को आरसीज किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। सो fine। इज इट अ करेक्ट स्ट्रेटेजी टू या एक्चुअली फोकस देखो, ऑन इट? हमें नंबर लाने हैं। अगर जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है वहां से नंबर लाओगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। जस्ट गॉट इट। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। आपको 3 RC करने में सही लग रहा है, डू 3 RCs। किसी को कॉपी करोगे, सब देखो सबकी कंडीशन, सबके दिमाग, सबका सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको मैं स्टार्टिंग से ही 4 RC का बताता तो शायद आप 4 RCs में प्रो होते, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में 3 RCs का पड़ा, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। मैं 3 RC करूंगा, शायद मेरे नंबर बहुत कम आएंगे, क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट टाइप ऑफ फ्रेम सेट, राइट। एक एक आरसी को ज्यादा टाइम देना, ये देना, वो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग है। फोकस ऑन दैट। गॉट इट। सो Well, द फोकस शुड बी ऑन द स्ट्रेंथ एरिया, एज इन किस तरीके से आप स्ट्रेंथ एरियाज पे कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। आपको जो सूट लगा है वो करो, हमारा मेन मोटिव है नंबर बढ़ाने। वो चाहे चीटिंग करके आए, वो चाहे कैसे भी आए, मुझे मेरे नंबर बढ़ाने हैं, बस। Pallav, सर like, hello, क्या है, can हेलो। I go? या Pallav, श्योर। what happened? What happens with me, Pallav? Like, when I'm attempting RCs in mock, it takes me more time. Like, जब मैं इंडिविजुअली कर रहा होता हूँ तब कम टाइम लगता है आरसीज को, और जब मॉक देने बैठते हैं तब मतलब 10 मिनट ले जाती है एक आरसी देखो सी, सॉल्व होने में। तो नो नो मतलब नो, वो वाली चीज होती है तब टाइम ज्यादा लग जाता है। नहीं मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगता। देखो एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए क्रेव करता हूँ, मतलब कि लेट नहीं मी नहीं टेल एकदम यू श्योर होके लेट चल। मी टेल यू वन थिंग। I also used to feel the same that you are feeling, कि मुझे बाद में टाइम कम लगता है, वैसे टाइम मतलब वो लगता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रैक्टिस आफ्टर द मूव, हम ना ऐसे लेजरली पढ़ रहे होते हैं। मान लो अभी मैं आपको सेशन ले रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितने मिनट का सेशन हो गया, मैं कितने मिनट का और लूंगा, ठीक है। मान लो मुझे 1 मिनट का ही और लेना है, मैं आपको बाय बाय आराम से बोल के चला जाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मेरे ऊपर घड़ी लगी हुई कि यू हैव 60 सेकंड लेफ्ट, यू हैव 50 सेकंड लेफ्ट, मेरे वर्ड्स तेज हो जाएंगे बोलना हुआ, मैं खुद घबराने लग जाऊंगा कि यार 50 मिनट 50 सेकंड ही रह गए, मैं कैसे कंक्लूड करूं, राइट। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रैक्टिस ऑफ द मॉक, है ना, तो हमारे पास टाइमर होता ही नहीं है। जैसे आप आरसी सोल्व करते होगे ना, आप पढ़ रहे होगे, आपको अंदर से फील आएगा कि आपने, यार ये तो जल्दी सोल्व हो गया, तो 1 मिनट में ही सोल्व हो गया, मैंने पढ़ लिया, हो गया। तो वहां पे दो थिंग्स होती हैं, एक तो वी डोंट हैव नोट ऑफ टाइम, एंड इवन इफ यू हैव नोट ऑफ टाइम यू डोंट हैव प्रेशर टू स्कोर द मार्क्स। तो आपका थोड़ा मूड वो लेजर में चला जाता है। द थर्ड थिंग यू आर डूइंग इज यू आर ओवर फोकसिंग, यू माइट बी ओवर फोकसिंग ऑन सम ऑफ द थिंग्स ड्यूरिंग द मूव, है ना, बिकॉज यू योरसेल्फ यस। आर अनश्योर कि वो चॉइस आएगी या नहीं, और वो श्योरिटी यस। आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। जस्ट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जो टाइम का रिडक्शन है वो एकदम से नहीं आएगा। और ऑल्सो फोकस कि आप आरसीज में कितना टाइम ले रहे हो और क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो। इसके लिए व्हाट आई यूज टू डू,
जैसे अलग सब साइट्स का अलग अलग आता है, तो ऐसे पता नहीं लगता कि तुमने सिर्फ आरसी पढ़ने में कितना टाइम लिया, राइट? तो उसके लिए मैं मॉक को रिकॉर्ड कर लेता था। ओबीएस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर आता है, या जूम रिकॉर्डिंग, सिर्फ अपने साथ मीटिंग स्टार्ट करो और उसको रिकॉर्ड कर लो पूरे मॉक को। उसके बाद आप स्क्रॉल करके देख सकते हो आपने कितना टाइम आरसी में लगाया। फिर आप जब ऑफ द मॉक देखोगे तो आप देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। तो कभी ना हमें, जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना ये कैट का मॉक, तो हमें पता ही नहीं लगता हम कितना टाइम उसको दे रहे हैं। शायद आप आरसी को 6 मिनट दे रहे होगे और आप ऑफ द मॉक उसको 3 मिनट में सोल्व कर रहे होगे। सो एट द नेक्स्ट टाइम यू शुड बी फोकसिंग ऑन completing the RC in 3 minutes and then focusing rest of the time in selecting the right choices। तो ये सब में काफी एनालिसिस लगता है। पहला एनालिसिस तो यही है कि मॉक रिकॉर्ड कर लो, वो सबसे बेस्ट है। जहां भी डाउट है उसमें वीडियो में देख लो कि मैंने यहाँ पे कितना टाइम लगाया, और फिर आपको वो आप कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले मैं ए पे गया, जैसे ABCD चॉइस है, पहले आपने ए हाँ, सिलेक्ट पहला किया, पहला लगता है ए फिर डी होगा, सिलेक्ट करके फिर ये डी। किया, फिर ये करके ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ये कर दिया, फिर ये कर दिया। हाँ। तो आपको लगेगा यार मैं क्या पागलपंती कर रहा हूँ, मैंने चारों चॉइसेस ढंग से पढ़ी हैं? अगर पढ़ी होती तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, कभी ये कभी ये। इवन इफ यू आर सिलेक्टिंग द रॉन्ग चॉइस, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंस अबाउट द रॉन्ग ना। कल को कोई आपको पूछे कि ये रॉन्ग आपने क्यों सिलेक्ट करके, हैव योर रीजन कि हाँ भाई मुझे ये लगा था, मैंने ओके। इसलिए कर दिया। दैट इज द थिंग। एंड ओवर द टाइम अगर आप बार बार रॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आपका वीक एरिया ये है कि आप ये चॉइस सिलेक्ट कर रहे हो। देन इन द 11th टाइम you already know that you don't have to select this type of choice। तो आप वैसी चॉइस सिलेक्ट नहीं करोगे, है ना? तो ऑलरेडी आपका एक इनकरेक्ट ऑप्शन बच गया। दिस इज द होल एजेंडा। हेलो हेलो सर। भैया। या हेलो। हेलो। हाँ, द गर्ल came first, so Sneha, I believe। Yeah। ओके। Hello, hi sir. Actually, sir, my mock score in VRC is like one digit for from these 2 months. So, can I expect this to cross 20 in these Uh, next 3 months? tell me honestly what you are doing for the VRC। Sir, for VRC, I am practicing 2 sets each day, Hmm. and VA 4 to 5 VA questions. आर यू एनालाइजिंग इट करेक्टली? मतलब एक एक चॉइस को पूरा पढ़ रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो कि वो क्यों गलत है, क्यों सही है? सर मतलब मुझे कभी कभी समझ आता है कि मैंने क्यों गलत करा, बट समटाइम्स आई डोंट फील व्हाई आई एम रॉन्ग। सी सो देखो, वहाँ। गॉट इट। देन आपको कोई मिलता भी नहीं होगा जिसके साथ आप ये डिस्कस कर लो। सो यस सर। द बेस्ट थिंग इज आप मॉक्स को ना, हम्म। मॉक्स को अटेम्प्ट करो जब भी वो आते हैं। देन जब मॉक का रिजल्ट आता है तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने वो मॉक दिया होगा, ठीक है? तो आप उनको ग्रुप्स में डाल सकते हो कि यार, जैसे ग्रुप्स में का यही फायदा है, आप उसको फोटो को डालो कि कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई सी इज इनकरेक्ट, आई चोज द सी, माय रीजनिंग इज दिस, बट व्हाई इट इज इनकरेक्ट। वहां पे फिर आपको सी के लिए भी 50 व्यूज आ जाएंगे लोगों के। कोई बोलेगा अरे इसमें ये नहीं था इसलिए इनकरेक्ट है, कोई बोलेगा अरे इसमें ये नहीं था ये इसलिए इनकरेक्ट है ना? तो हम्म। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग यू वुड रिक्वायर, बिकॉज जो आपका सिंगल डिजिट से 20 तक का स्कोर है ना, वो आपको एनालिसिस से ही आएगा, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपका कभी कभी उसका 20 आ भी गया, तो देर वुड बी नो कंसिस्टेंसी इन दैट। आई फ्लक्चुएशन वॉन्ट, हुई। हाँ, टाइम टाइम दो, मुझे कोई इशू नहीं है टाइम देने में, आप टाइम दो अपने उसको स्कोर इम्प्रूवमेंट को, बट मेक श्योर कि जब आपका स्कोर इम्प्रूव हो वहां वहां पे स्टेबिलिटी आ जाए। 20 पहुंच गया तो 20 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है? वो तब आएगा अब देखो आपके पास तो इम्प्रूवमेंट का इतना स्कोप है ना, क्योंकि जैसे आपके सिंगल डिजिट में आ रहे, तो यू मस्ट बी डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, है ना? बहुत इनकरेक्ट चीजें कर रहे होगे आप। सर मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे साथ VA तो सारे सही हो जाते हैं, बट मेरा RC मैं समझ सही लेती हूँ, मुझे लगता है मैं सही समझी हूँ, मुझे लगता है मैंने सही मार्क किया, बट वो हमेशा मेरे गलत हो जाते हैं। आपको लग रहा है आप सही समझो, तो आप सही ही समझोगे, बिकॉज आरसी को इतना बड़ा खेल नहीं है। आपकी जो क्वेश्चन को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग है ना, वहां पे गलती हो रही होगी, ठीक है? और अब आपका वीआर आरसी गलत ही गलत गलत ही गलत गलत ही गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता लग जाए ना आप गलती कहाँ कर रहे हो। जब आपको पता लगे गलती कहाँ कर रहे हो, उसके बाद ही हम गलती को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे इतना जो उसका एनालिसिस आता है उस पर फोकस करो। वीडियोस भी आती है, वीडियोस को देखो। मैं पूरी वीडियोस देखता था वीआरसी की। डीआईएलआर का मेरा एनालिसिस 5 मिनट का होता था, क्वांट का मेरा एनालिसिस होता ही नहीं था, मेरा एनालिसिस ही वीआरसी का होता था मॉक में। पर वीआरसी के लिए मैं फिर सब कुछ कर लेता था कि मुझे एटलीस्ट पता लग जाए कि बस मेरी गलती कहाँ है। मुझे मार्क्स ही चाहिए, मुझे गलती बता दो मेरी, और मुझे ये बता दो कि वो गलती कैसे इंप्रूव होगी। वो आपकी तभी इंप्रूव होगी, यू विल फील। देखो,
जो बच्चे वो होते हैं ना कि पढ़ने में मतलब एफर्ट्स पुट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ग्रुप ऑल्सो, उनका ग्रुप पार्टिसिपेशन भी होगा। अब आपका ग्रुप, आप लोगों का ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है इस बार कुछ भी, बिकॉज आप कर ही नहीं रहे। आपको डाउट आएंगे तो आप ग्रुप में पुट करोगे, और जो उसको सोल्व करेगा डाउट को, दैट मीन्स यू बोथ आर प्रिपेयरिंग, है ना। आपका धीरे धीरे आपको ऐसे 5-6 लोग मिल जाएंगे, दैट इज इनफ। तो जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स। अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में पुट करो, जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो रिप्लाई कर देगा, एंड आई एम 100% श्योर आपको 15-20 सीरियस कैंडिडेट मिल जाएंगे। एंड सर जैसा आपने बोला कि हाँ, वन एट ए टाइम। सर आपने जैसे बोला कि सीएल एंड टाइम्स के मॉक जो प्रीवियस मॉक्स थे उनको भी करो, राइट? तो सर वो कहाँ से मिलेंगे हमें? वो यार रोज पीडीएफ शेयर होती है ना, जस्ट बी एक्टिव इन द ग्रुप। ग्रुप में आती है उसकी पीडीएफ जिप फाइल, और आप ओके किसी से भी ग्रुप में मांगोगे तो पीपल हैव इट। टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूरा टेलीग्राम ग्रुप जिप फाइल ही पड़ी है। आप टेलीग्राम पे जाओगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी आप। सर आपका ही ग्रुप है वहाँ पे टेलीग्राम पे? हाँ हाँ हाँ, टेलीग्राम पे आई विल आप शेयर लिंक। ग्रुप ठीक पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार टेक्स्ट कर दो, आई विल सेंड इट टू यू। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। Hi, हेलो Pallav. भैया। How do you हेलो use भैया। to analyze the mocks? just one at a time, guys. Who have raised the hand first should go. Um, Ayush, I believe. Ayush is Sopa. So I have done with my doubts. So yeah. So lower the काम आ hand. रहा है। I have a doubt. हेलो। Guys, go with the hands. Like whosoever. Just give me a minute. Let Uh, me decide. Just give me a minute, guys. Urvashi first. Yeah. Hi, Pallav. How do you use to analyze the VRC section? So in the VRC, for me, it doesn't matter whether I'm getting 40 plus or I'm getting 20 minus. What matters for me is I used not to solve the complete paper, but I used to solve each and every question. Like मैं question को देखता था, then I used to analyze 4 choices. Why this choice is correct, why these choices are not correct. Same goes for every question, and same for the VA. For example, in the VA, in the para summary, why 3 choices are incorrect, what are the reasons for that, and why one specific choice is correct. And what happens most of the time, you would have a confusion between 2 choices only, like C versus D. Then just overemphasize and just have a learning. And if you have, you don't need to make any notes for the VRC. Just have consistent learning. If you are doing it daily, you would build an implicit mindset in your mind कि आपको कैसे tackle करना है. And the improvement will be very slow, but in the next 15 to 20 days, if you just put efforts for the next 15 to 20 days, nothing less, nothing more, you would see an improvement for sure. So you used to analyze the correct answers as well, the correct Incorrect solution that also. you want. Both Incorrect the only. choices. Okay. Thank you. हेलो भैया। Yeah, hi. जैसे वीआरसी पार्ट में मेरा वीए पार्ट थोड़ा मतलब कि सही है, बट आरसी में कभी एक पैसेज ही अटेम्प्ट कर पाता हूँ और कभी सही होते हैं और तो कभी गलत होते हैं। आरसी में एक पैसेज यस यस भैया। नहीं, then you are giving too much time on the VA or even in the RC also. RC अगर पूरा VA भी कर लोगे, कितना मिनट देते हो VA को? वीए को 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, let's take 20 minutes. So the next 20 minutes आप एक RC को 20 मिनट दे रहे हो सोल्व करने में। यस भैया, मेरा प्रॉब्लम मतलब कि जो है वो आरसी से ही है और उसके लिए मैं डेली मतलब कि 2 आरसी प्रैक्टिस करता हूँ, you बट are giving too much time even to the VRC also, VA also. It should not be more than 15 minutes. ओके। और जैसे मैंने And प्रीवियस ईयर for कैट के पेपर the RCs, not more than 10 minutes or not more than 12 minutes. ओके। सो भैया जैसे मैंने प्रीवियस ईयर कैट के आरसी जैसे किए हैं 2017 18, वो मेरे को समझ में आते थे और मेरे से हो भी जाते थे, बट जैसे 21 22 के मैंने जैसे आरसी देखे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ देखो, 2017 के शायद जो आरसीज थे, हाँ 17-18 के आरसीज बहुत इजी हैं, और अच्छा। बट उसके परसेंटाइल भी फिर उस अकॉर्डिंग आए थे। 19 का लेवल बहुत हार्ड है शायद, फिर 20 21 22 का लेवल
19 से तो कम है, बट 22 का लेवल शायद थोड़ा हार्ड है 21 से। तो मतलब कैट अब थोड़ा तो वो दे रहा है, बिकॉज वही है ना, मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स ही तो आपको लाने हैं। अगर आप 20 मार्क्स ऐसे लाओगे तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो देगा ही। बट जो आप एक पैसेज, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट, उसको आप मिनिमम दो तो करो स्टार्टिंग में। ओके, सो भैया इसको मैं मेरे को जैसे आरसी को इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव कैसे करे? जैसे कि मैं डेली तो दो You might be practicing a lot, but you might not be analyzing it correctly, or maybe not giving much time to analysis. ठीक है, तो यार देखो, ये मेरे साथ भी होता था। हम ना ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू द आरसी एनालिसिस, वी आर ऑलवेज रश, क्योंकि कोई लॉजिक तो होता नहीं है। वो पूरा टेक्स्ट पढ़ो, पूरी वीडियोस देखो, उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना। बट आई ये वुड से ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। इट इज अ पेन पॉइंट, बट जस्ट बी विद द फ्लो। यू हैव टू डू, तो यू हैव टू डू, करते रहो उसको। ओके भैया, Hello. थैंक अर्श नेक्स्ट। Hello. Hi, Pallav. हाय। So we all know that you scored around 113 marks Sorry, in the actual I test. cannot audible clearly, please. Hello. Yeah. Yeah, so we all know that you scored around 130 marks in the actual CAT. Mm-hmm. So can you please tell what was your average scores across all the mocks, and which mock test series did you find the most relevant according to the test CAT level? देखो, मॉक टेस्ट सीरीज के लिए तो आई जस्ट शेयर्ड वन वीडियो टुडे कि कौन सा बाय करना चाहिए। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द मॉक्स। और एवरेज मेरा रहता था यार 120 प्लस 120 के राउंड रहता था। कंप्लीटली डिपेंडेंट Okay. ऑन बुक। Thank you. Pallav, does vocab matter Okay. for comprehension? सॉरी, Does vocab matter for comprehension? मैं बोला vocab अलग से करना तो vocab? जरूरी। Oh no भाई, my vocab is very poor. Okay, Pallav. So, when you used to prepare with a previous year mock, so you used to do it with in time manner or completely in time? Mostly in the time manner as a sectional. Okay. Because previous And years are like very relevant resources, so I don't want to waste it for like just doing the individual stuff without the timer. So I used to attempt it as a full mock or maybe section wise. okay, all right. Hello. Hi. Hi, am I audible? Yeah, you are. So I have a slightly different question, not exactly related to VARC, Sure. but so I started preparing full-fledged from August. So do you think it's like very late? And because I've not taken any of the mocks yet, No, and I I've been like preparing with the course now. see from which course? Sorry? Are you taking any coaching? Yeah, I'm taking IMS coaching. Basically I started preparing, I took the February batch, so I have been preparing only on the weekends because I work as well. But फिर उसके बाद ट्रैक नहीं रहा, तो for No 2-3 issues. months Just मैंने go पढ़ाई with नहीं। the flow of the coaching and make sure you are completing the syllabus at least 1 month before the CAT. The syllabus is not that big, to be honest, because in the DLR, in the VRC section, you just need an understanding and no hardcore syllabus is there. For the तो मेरी quant और DLR is very weak actually. No issues यार। देखो, what I'm saying कि just देखो, even if it is weak, जो syllabus कराएंगे वो at least cover that, है ना? At least focus in the classes and do the practice material and everything. And फिर from the next month start giving the mocks. And IMS के mocks कर लो, जितने भी वो दे रहे हैं, 10-15 mocks होते हैं ना, तो 15 mocks and past years enough for a good CAT attempt, for even for the 99 percentiles. But देखो, there are people. So I am not late, right? No, actually the thing is ना कि CAT doesn't require you to give mocks or something. CAT वाले बंदे को, paper setter को नहीं पता कि how many mocks you have attempted. It is just how you perform on that day. So if you are starting late, if you are making sure कि आपका 20 नंबर हर section में आ रहा है, and there is one section which comes out as your strength, and you are getting 30 marks in that, and you end up ending 70 to 80 marks. That is completely fine. आपको 98-99 percentile आ जाएगा, आपको सारी calls आ जाएंगी, है ना? तो everyone has a different story. मतलब 98 पर
देखो एवरेज परसेंटाइल 98 99 पे कॉल आ जाता है. आफ्टर दैट योर कैट परसेंटाइल डजंट मैटर सो मच. या बिकॉज मैं उतना लाइक द प्रेपरेशन लेके मुझे लग रहा है ओके दिस इज नॉट आई एम डूइंग राइटली और मे बी दिस इज वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग बिकॉज आई स्टार्टेड लिटरली इन अगस्त तो आई एम गेटिंग वेरी See, कंफ्यूज्ड एज just टू just हाउ टू forget गो that अबाउट. fact you started in August. That is one of the hindrances. Just don't even tell anyone कि you have started in August. Just go with the flow and make sure कि 3 महीने बहुत है बहुत है 3 महीने कर लोगे. No issues with that. Or per day, like what is the right amount of time we should invest for proper CAT As much preparation? as you can. Okay. All right. Hello. Akansha. Next. Hi. Hi. Actually, I wanted to ask that I'm taking time coaching, so they are suggesting for the variety of understanding the passages you have to go for variety of articles. So is it necessary? Actually, the thing is कि for the VRC there is no class, there is no faculty even in the complete India that can teach you or make you work except the GISO. GISO is the one I found very good, but for the VRC even the GISO wouldn't work until and unless you make your own strategy. देखो the thing is कि CAT में ना how would I say it? देखो मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आपको कुछ नहीं पता. Let's assume that we are having one-on-one interview and I am having interview with 50 candidates. मैंने तुम सबको एक सिंपल क्वेश्चन दिया बट वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता. ठीक है. मान लो मैंने बोल दिया कि महात्मा गांधी की जो मैरिज डेट थी वो क्या थी, बताओ. किसी को नहीं पता होगा बट द पीपल वुड रिएक्ट डिफरेंटली. आई एम एक्सपेक्टिंग 0 स्कोर आउट ऑफ दिस फ्रॉम 50 कैंडिडेट्स, बट यू माइट बी साउंड वेरी नर्वस इन आंसरिंग दैट सर वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं. कोई बोलेगा सर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हो, कोई बोलेगा सर इसका रेलेवेंट नहीं है ना. एंड कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर आई डोंट रिमेम्बर एंड आई हैवंट एवर रेड अबाउट दिस स्टफ so I can't be able to explain it, right? तो the thing is same. आपका जो पेपर है, आपका जो अप्रोच है ना, वो हाईली डिपेंडेंट है आप उसको टैकल कैसे कर रहे हो. अगर आप देखो ऐसे पर्सन हो कि जो आप थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में नर्वस हो जाते हो तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए. ठीक है. इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या डिफिकल्टी लेवल आता है, उनको करना है तो करना ही है. ठीक है. चाहे वो गलत करें बट उनका कॉन्फिडेंस है करूंगा तो करूंगा ही. ठीक है. तो वो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है, उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है. ये स्ट्रेटेजी जो आपकी बनाओगे वो मेंटर डिसाइड नहीं कर सकता, एटलीस्ट फॉर द VRC सेक्शन. DLR क्वांट में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं सब, बट VRC में किसी की एक स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी. आपको बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरेस, अगर आपको कंफर्ट आ रहा है गो विद दैट, अगर नहीं आ रहा तो पढ़ लो. लाइक मेरा था कि मुझे हिस्ट्री के पैसेज इतने समझ नहीं आते थे जब उसमें टर्मिनोलॉजीज कुछ इंक्लूड हो जाती थी. जैसे 21 में कुछ आया था सेकंड स्लॉट में इंडिपेंडेंस के अराउंड पैसेज, आप देख लेना जाके. मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया बट ठीक है. बट फिर भी मेरे उसमें 2 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए क्योंकि थोड़ा थोड़ा जितना समझ आया मैंने उससे अपना इन्फ्रेंस निकाल लिया. बट मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता था जब भी हिस्ट्री का पैसेज आएगा वो अगर मीडियम लेवल का होगा तो मैं कर लूंगा, डिफिकल्ट आएगा तो मुझसे नहीं होगा. दैट इज द सिंपल थिंग. Okay, thank you. कुणाल. Hello, am I audible? Yeah. Actually, I do struggle in time management. It's like कि मेरा syllabus 80 to 90% हो गया, but still it's left. तो मैं करता हूँ कि like ऐसे VRC में कौन सा सिलेबस है? Not in VRC, but overall time management की like lectures भी और practice भी ऐसे करके तीनों subjects का cover नहीं हो पाता एक दिन में, तो मेरा time बिल्कुल mess up हो जाता है. Got it. So for that thing, first have a reality check on your mock scores. देखो mock score से हमें मतलब है और किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है. अगर आपके mock scores आ रहे हैं तो आपका सिलेबस भी सेट है, आपका टाइमलाइन भी सेट है, सब कुछ सेट है. आपका mock score नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे देयर वुड बी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत होंगे जिनका कंप्लीट सिलेबस डन है, उनका mock score फिर भी नहीं आ रहा होगा. बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी आधा ही हुआ है लेकिन उनका mock score डिसेंट आ रहा होगा, एटलीस्ट उनसे ज्यादा ही आ रहा होगा, है ना. तो पहले mock score देखो कैसा आ रहा है, देन डिफाइन कि आपको देखो DLR में कोई सिलेबस नहीं होता. अगर आपका DLR का स्कोर कम आ रहा है तो स्टार्ट डिफाइनिंग योर स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा मैटर करती है. VRC में कोई सिलेबस नहीं है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा 2 महीने बाद भी आपका सेम ही स्कोर आएगा क्योंकि उसमें आपको वर्क करना है, टीचर वर्क नहीं कर सकता. क्वांट में आई कैन एग्री, अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे,
बट देयर माइट बी सम प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, फिर भी आपको नहीं आएगा या आएगा, है ना। तो पहले मॉक स्कोर देके, मॉक स्कोर से देखो आपको क्या लेवल आ रहा है, क्या परसेंटाइल आ रही है, 3-4 मॉक्स दो, देन देखो आपका कहाँ सिलेबस क्या चल रहा है, बिकॉज सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होगा कैट का। और सिलेबस एटलीस्ट फॉर द डीएलआर वीआरसी अब कोई सिलेबस ही नहीं रहा। डीएलआर में कंप्लीटली न्यू सेट आते हैं, वीआरसी में कंप्लीटली न्यू सेट्स आते हैं। क्वांट के लिए सिलेबस है और क्वांट में सिलेबस मैटर करता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट का तो कोचिंग से तेज तो चल नहीं सकते, तो कोचिंग के तो साथ ही चलना पड़ेगा। बट टाइम बट मेक श्योर कि जो कोचिंग वाले डेली करा रहे हैं उतना तो कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद कोचिंग वालों ने तो आपको सिलेबस करवा दिया बट फिर आपका खुद ही सिलेबस नहीं हुआ। ओके ओके, थैंक यू। ओके देवंजन। हाय पल्लव। हाय। मैं जब फर्स्ट टाइम पैसेज पढ़ता हूँ तो समझ नहीं आता, तो सेकंड टाइम जब पढ़ता हूँ तो समझ आ जाता है मैं, और क्वेश्चन भी ठीक ठाक हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम नहीं समझ आता क्यों नहीं ठीक आता ठाक। फर्स्ट टाइम? व्हाट हैपेंस एट आई लैंग्वेज का डिफिकल्टी, लैंग्वेज समझ नहीं आता फर्स्ट तो टाइम सेकंड पढ़ने। टाइम में कैसे आ जाता है? सेकेंड टाइम में प्रीवियस एक नॉलेज था पैसेज में क्या बोल रहा है, या तो तो देखो कनेक्ट। फर्स्ट टाइम में जब पढ़ोगे ना, डोंट रीड कंप्लीट पैसेज एट वंस। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, मेक श्योर यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं समझ आ रहा फर्स्ट पैराग्राफ, अगेन रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, देन यू विल अंडरस्टैंड। देन आफ्टर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो फर्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा। मैं पहले, मे बी आप ऐसे करते हो या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं पता है पहले कैसे करता था। जैसे फर्स्ट पैरा पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, कंटिन्यूस पूरा पढ़ जाता था, पूरा हलवा बन जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। देन आई स्टार्टेड रीबिल्डिंग कि मुझे जब 5-6 लाइन समझ नहीं आई, हाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर। फिर फर्दर तो फिर वो उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम्हें बेसिक्स का आइडिया नहीं है, तुम एडवांस स्टेज को पढ़ रहे हो, है ना। मेक श्योर कि बेसिक जब तक नहीं हो रहा क्लियर तो आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. Next question. मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ। कुछ कुछ पैसेज का कुछ कुछ पैसेज में कुछ कुछ पैराग्राफ बहुत लंबे होते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करता है? तो देखो अगर पैराग्राफ लंबे होंगे तो ओवरऑल पैराग्राफ का नंबर्स कम होगा। लाइक इफ देयर इज वन पैराग्राफ लाइक दिस एंड सेकंड पैराग्राफ इज दिस लेंथी, है ना, तो जस्ट ब्रेक दिस पैराग्राफ इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। हाँ, बीच देखो में अगेन लॉस्ट दैट, हो जाता हूँ। हाँ सॉरी, लॉन्ग पैराग्राफ में बीच में लॉस्ट हो जाता हूँ। बीच में तो लॉस्ट हो जाता है ना, इसलिए हो जाता है कि आप इकट्ठा पढ़ते हो। आप पहले पैराग्राफ अगर समझ आया, सेकंड पैराग्राफ की 3-4 लाइनें पढ़ो, ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आगे मत बढ़ो। जब ये क्लियर हो जाएंगी तब ये करो, देन ये करो, देन ये करो। अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, यू हैव टू ट्राई द थिंग्स आउट एंड मेक श्योर व्हाटएवर यू आर वर्क विद व्हाटएवर यू आर वर्किंग, उसमें जो आपके साथ सही वर्क कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस। और सोशल साइंस और फिलोसॉफी का, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स पढ़ने No चाहिए? external source required, just practice that type of passages more often. ओके, थैंक यू, थैंक यू। Just last few questions, guys. If you have any, please ask. Else we will be leaving the session. हेलो। Hi. हेलो भैया, तो मेरा क्वेश्चन भैया ये था कि जैसे कि आपने बताया ना कि कंसिस्टेंट स्कोर आना चाहिए इंग्लिश में, आपको जैसे 20 आना चाहिए, DILR क्वांट्स में आना चाहिए। तो लेकिन ना मेरा जैसे कि ना VRC में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर मेरे जैसे ओवरऑल मॉक्स में जो मार्क्स आते हैं ना वो क्वांट्स और DI से आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक मॉक्स में मेरे 40 आए थे, और कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। और अगले ही मॉक्स में मतलब 2 मॉक्स के बाद अभी रिसेंटली जो थे उसमें मेरे 5 मार्क्स बने ओवरऑल। लाइक उसमें DILR और क्वांट्स मुश्किल आया था, और VRC मेरा मार्क्स आते नहीं है। तो और VRC में ऐसा भी है कि जैसे कि मैंने एक मॉक में दिया तो उसमें समरी क्वेश्चंस नहीं बने, ठीक है। तो उसमें मेरे समरी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगले में समरी नहीं करता, तो अगले में समरी वाले आसान आ गए। तो उसमें हम कैसे कंसिस्टेंसी बना सकते हैं? क्या जैसे आप तो सारे कर देते थे, तो हम क्या
मतलब चूज कैसे करें जिससे कि कम से कम इंग्लिश में 20 मार्क्स आए हैं? देखो उसमें तो फिर यार देखो देखो आप if you are attempting lower number of questions so that means you have much average time for each question, right? जैसे आप अगर 2 ही आरसी कर रहे हो 4 की जगह, तो आपके पास टाइम तो सेम है ना? दो भी आरसी नहीं हो पाते भैया, जैसे कि मैं जैसी एवरेज में रहेगी वीए तो मैं पूरा कर लेता हूँ और आरसी एक कर पाता हूँ, तो आरसी में कभी कभार हो सकता है कि सही हो जाते 3-2, कभी कभार नहीं होते, तो देखो यार, पता if you चलता are है। doing 1 आरसी मेक श्योर कि एटलीस्ट वो तो सही हो ना। देखो अगर आप आरसी आप भी एक कर रहे हो, वीए मतलब जो भी आप कर रहे हो, आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हो 40 मिनट्स में, तो आप हाँ कुछ तो उसमें या तो देखो, फिर अगर आपको स्कोर ही कम आ रहा है तो वाई नॉट टू मैक्सिमाइज द अटेम्प्ट्स, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक आरसी कर रहे हो। देखो एक आरसी कर रहे हो तो दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि स्पीड की शायद प्रॉब्लम है होगी, नहीं, क्योंकि मैं उसका पढ़ नहीं पाता, कि दो समझने में टाइम लगे। देखो एक आरसी में ना आप 3 आरसी छोड़ रहे हो, एक कर रहे हो 3 छोड़ रहे हो, हाँ तो उसमें बहुत चीजें इजी मिस हो रही हैं आपकी, क्योंकि 3 आरसी में इजी क्वेश्चंस बहुत होंगे। हाँ पूरा बिल्कुल। पूरा सेट इजी नहीं होगा, आरसी हार्ड हो सकता है, क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, ऐसा भी आता है। हाँ ठीक है, तो आप मिस आउट बहुत कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको मिस आउट करना है, आई डोंट हैव इश्यू विद दैट, बट फिर आप ऐसा तो श्योर करो ना कि जो आप जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें अच्छी एक्यूरेसी आए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। मैं उसमें कुछ बता नहीं सकता कि ये करो तो आपकी एक्यूरेसी आएगी, वो तो आपको प्रैक्टिस से आएगी। बट आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें देखो कि फिर आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आप टाइम ज्यादा देके भी गलती कर रहे हो तो टाइम ज्यादा देने का कोई सेंस नहीं है। मतलब आप 20 मिनट आरसी को दे रहे हो और आप 4 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट दे रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे रहे हो, फिर भी आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है, फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो फिर 20 मिनट का कोई फायदा नहीं है, फिर वो आप ओवर टाइम कर रहे हो उसको। तो तो मुझे शायद आरसी के अटेम्प्ट्स बढ़ाने चाहिए, है ना? देखो आरसी के टाइम बढ़ाओ या पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। अगर आपको आरसी समझ नहीं आ रहा तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। आरसी समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी कर रहे हो, फिर आप टाइम पे फोकस करो। पहले मेक श्योर कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टफ। पर भैया ऐसा भी है, जैसे कि जब मैं वैसे प्रैक्टिस करता हूँ ना तो मैं टाइमर के साथ करता हूँ, तो वैसे मैं 15 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ आरसीज को, जो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आरसीज है। लेकिन जब मॉक्स देता हूँ तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, शायद उसमें प्रेशर की वजह से। तो क्या कर सकते हैं मतलब इसमें? सॉरी, मैंने कहा जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना तो आरसी को मैं 15 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के टाइमर में करता हूँ। तो उसमें मैं 2 आरसी को 30 मिनट में कर देता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि 2 आरसी कर लूंगा वो एग्जाम में, फिर वीए भी कर लूंगा। लेकिन जैसे मॉक्स देता हूँ तो उसमें नहीं हो पाता, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर एक्चुअल मॉक्स में सोचता हूँ कि मेरे को सही करना है, तो पूरा अच्छी तरह समझने में ज्यादा टाइम लगा देता हूँ। वही है यार, देखो फिर वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब आपकी सिचुएशन यूनिक है, आपसे रिलेटेड है, तो वो आपको ही वर्क करना पड़ेगा उस पे। डिफरेंट चीजें करो, ज्यादा मॉक्स दे दो, ज्यादा सेक्शन दे दो। जस्ट गिव मी। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ यार, मैं वो बच्चों का टेस्ट ले रहा था वीआरसी का। आ रहा हूँ बस, आई एम ओवरिंग जस्ट इन द 5 मिनट्स। Yeah, any last minute questions, guys? I have to go to the dorm party. Hello. Hi, Vachika. Hi, sir. Sir, I had a query in points if you could take it in this session. Sure. हाँ जी सर. हाँ, sure. Go ahead. Okay. सर मेरा पॉइंट्स का सिलेबस ना कंप्लीट नहीं हुआ है एंड इट्स लाइक कि मैं मॉक में जब भी अटेम्प्ट करती हूँ मेरे 4 से ऊपर कभी नहीं बनते एंड 4 क्वेश्चन भी वो बड़े बेसिक वाले होते हैं. तो लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, लाइक शुड आई कंप्लीट माय सिलेबस और लाइक आई शुड जस्ट फॉलो द डन टॉपिक्स? देखो देखो 4 क्वेश्चन इज वेरी लेस टू बी ऑनेस्ट, and Yes, sir. it irrespective of your syllabus completion, you can do at least 6-7 questions in my opinion. It might be a huge number because मेरा थोड़ा biased है क्वांट की तरफ, बट मतलब बिना सिलेबस के भी 4 क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है। तो आप देखो, अगेन आई डोंट नो द रीजन, बट अगर आप गो थ्रू करोगे पूरे 22 क्वेश्चंस को इन द क्वांट, तो यू वुड फील, just give me a minute यार। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ नहीं, आई एम कमिंग इन जस्ट 2 मिनट। चलो ठीक है, मैं वेट कर। हाँ तो यस, आई वाज लाइक, हाँ
So if you go through the 22 questions in 40 minutes, you would easily find at least 6 to 7 questions of your area. There are really very simple questions of the mixture and alligation, ratio proportion, percentage, profit and loss, simple interest and compound interest, right? There would be topics like, or maybe some other topics, geometry, if you like that, depending on your likings and your prior knowledge. But देखो syllabus भी अब मैं I don't know कितना syllabus हमने किया है, लेकिन कुछ तो किया होगा ना. Make sure सर कि करा आप तो है बट वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है. मैं कितना भी ईजी की भी वीडियोस देखती हूँ, मैं रोदा की भी देखती हूँ, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता. तो यार देखो सिलेबस अगर कर रहे हो तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और मेक श्योर कि उतना तो आप कर ही पाओगे. आपने 20% सिलेबस किया तो उसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो कर ही पाओगे, क्योंकि अगर आप अभी वो नहीं कर पा रहे फिर आप बाकी जब सिलेबस करोगे वो तो इकट्ठा होता जाएगा, है ना. तो ये सर. प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो. और देर इज एंड एक सीएल की पास्ट ईयर की बुक है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी. जो भी आप क्वेश्चन करो, मतलब जो भी आप टॉपिक करो ना, पहले उससे प्रैक्टिस किया करो. वो पास्ट ईयर के 1990 से लेके आज तक के जितने भी क्वेश्चन है 26 17 18 तक वो सब है. हाँ जी सर, वो मैंने स्टार्ट करा था, हाँ. बट इट्स लाइक कि मैं जैसे एम कैट देती हूँ तो लाइक जैसे एनालिसिस करते हैं तो मैं AMCAT उसकी. quant is very irrelevant. Don't most relevant quant is of the IMS mocks, ओके सर. IMS and CL. तो AMCAT में इग्नोर करो उसको. अच्छा सर. हाँ, तो ठीक ठीक है. है. ओके, थैंक यू सर. Okay, so bye everyone. We are ending this session and we will be having DLR, quant and overall session in the upcoming days. ये session मैं YouTube पे डाल दूंगा, so you can watch then and there also whenever you feel it. Just one request: don't maximize your resources, fix your resources and be limited to that. Make sure that you complete whatever your resources are. And thank you and have a very happy day. Wish you all the best for the upcoming CAT.